মাননীয় মন্ত্রী আগেও আপনাদেরকে বলেছেন, উনি যতবার বলেছেন যে তৃণমূলের সাংসদদেরকে আপনারা আসুন আমার সাথে কথা বলুন, কিন্তু তৃণমূলের সাংসদরা কথা বলতে রাজি হননি। আজকে এই পরিস্থিতি কেন হয়েছে, এর যদি মূলে যাই আমরা, যে 100 দিনের কাজে এমজি এর কাজে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এই দুর্নীতিটা হতো না যদি রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কথা মতো প্রতি জেলাতে দিশার মিটিং ডাকত। দিশার মিটিং এই বিষয়গুলো আলোচনা করার জায়গা ছিল। সেখানে যেহেতু এমপিরা থাকতেন, এমপি সভাপতি দিশার মিটিং এর, স্বাভাবিকভাবে বিজেপির যেহেতু 18 জন এমপি জিতেছিল, রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই চায়নি যে দিশার মিটিং হোক। আর যদি এই দিশার মিটিং হতো তাহলে পরে কিন্তু আজকে এই ঘটনা ঘটতো না। সমস্ত কিছু কিন্তু ওখানেই আলোচনা করে সেখানেই আটকে দেওয়া যেত। আজকে মাননীয় মন্ত্রী বললেন কয়েকটা জেলা ঘুরে ঘুরে 4 কোটি টাকার উদ্ধার করার কথা বলে গেছিল। 4 কোটি টাকা মুখের কথা না, জনগণের ট্যাক্সের টাকা। সেই টাকা উদ্ধার না করে, ফেরত না দিয়ে, কোনো এফআইআর না করে ড্রামাবাজি চলছে। আজকে রাজভবন এবং হাইকোর্ট সংলগ্ন এলাকা, যে এলাকায় 144 ধারা জারি থাকে, আমরা এই প্রশ্ন ছুড়ে দিতে চাই রাজ্য বিজেপির তরফ থেকে যে 144 ধারার মধ্যে কিভাবে অভিষেক ব্যানার্জি অবস্থান বিক্ষোভ করছেন 144 ধারা ভেঙে? পুলিশ কি তাকে রিটেন পারমিশন দিয়েছে? যদি দিয়ে থাকে সেই পারমিশনের কপি দিতে বলুন। কোন অধিকারে দিয়েছে রাজ্যের ডিজি পুলিশ? দ্বিতীয় কথা, যদি উনি আইন ভেঙে করে থাকেন, অর্থাৎ রাজ্য পুলিশ পারমিশন দেয়নি 144 ধারা ভেঙে সেখানে সভা করার, তারপরে যদি উনি করে থাকেন, তাহলে ওনার বিরুদ্ধে জিডি হওয়া উচিত, জেনারেল ডায়েরি হওয়া উচিত কমসে কম। তো জেনারেল ডায়েরি কি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে হয়েছে, বা ওই মঞ্চে যারা ছিলেন তার স্ত্রী থেকে শুরু করে তাদের বিরুদ্ধে হয়েছে কি? সেই প্রশ্নের উত্তর রাজ্য পুলিশকে দিতে হবে। যদি না দেয়, তাহলে আগামী দিনে ডিএ প্রার্থীরা যদি গিয়ে ওখানে অবস্থান বিক্ষোভ করে, তাহলে রাজ্য পুলিশ কিন্তু তাদের বাধা দিতে পারবে না। যদি বিজেপি মনে করে যে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব, আমাদের বিরোধী দলনেতা এবং অন্যান্যরা, আমাদের সাংসদ, বিধায়ক, তারা যদি রাজভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে যে কামদুনির বিচার কেন হলো না, এই পুলিশ কিন্তু তখন 144 ধারার কথা কিন্তু বলতে পারবে না। আমরা জানতে চাই যে সেক্টোরিয়াল ল কি পশ্চিমবঙ্গে করা হচ্ছে নাকি, যে সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারীর জন্য 144 ধারা থাকবে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য 144 ধারা থাকবে না? এর উত্তর রাজ্য পুলিশকে দিতে হবে। এবার আমি মাইক আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমতী নিরঞ্জনা জ্যোতিজির হাতে তুলে দেব। উনি আপনাদের সামনে বিস্তৃতভাবে কেন্দ্র সরকারের যে পয়েন্ট, কেন্দ্র সরকারের যে বক্তব্য, সেই বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন। ধন্যবাদ। सबसे पहले मैं महिषासुरमर्दिनी मां काली को प्रणाम करती हूँ और आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। कलकत्ता की इस पावन धरा पर जहाँ मां भागीरथी आकर के समुद्र में अपने आप को समर्पित किया, ऐसे पावन पवित्र भूमि में नेता प्रतिपक्ष और मेरे प्रदेश के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों के बीच में, मैं आपके बीच में मजबूरी में मुझे आना पड़ा। 2 दिन पहले टीएमसी के नेताओं ने कहा कि हमारा प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलना चाहता है। विषय पूछा गया कि किस विषय को लेकर मिलना है। उन्होंने कहा मनरेगा को मिलना है और केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमने कहा आइए, मैं सिर्फ दिल्ली टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल से ही मिलने के लिए गई थी। मेरे पास बहुत काम था, काम छोड़ करके गई थी। मैंने कहा आप अपना तय कर लीजिए कितने लोग मिलेंगे। उन्होंने कहा हम 5 लोग मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा लोग में बातचीत नहीं हो पाएगी। मनरेगा में जो गड़बड़ियां हुई हैं हम अपने तथ्य रखेंगे। 15 मिनट के बाद वापस
मेरी पीएस अनुरमा जी और मेरे एडिशनल पीएस सौरव जी लगातार संपर्क में थे। एडिशनल पीएस के हमारी पीएस के रूम में आकर के वार्तालाप हो रही थी। फिर बोले हम लोग 10 लोग मिलेंगे, तो मैंने कहा 10 लोग आ जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर बोले हम जनता के साथ आएंगे। मैंने कहा भाई आपने जो इशू उठाया है मनरेगा का, आपके सेक्रेटरी बैठे, आपके प्रदेश के मंत्री बैठे और दोनों के बीच में वार्तालाप होनी चाहिए। जहां गड़बड़ियां की हैं उनको आप पूरा करिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। फिर 15 मिनट के बाद 7 बजे के लगभग मेरे पास सूचना आती है कि नहीं पहले जनता मिलेगी, क्योंकि इनके कार्यकर्ता गए हुए थे। मैंने कहा नहीं, जिस विषय को लेकर के मेरे पास आप बैठे हैं पहले उस विषय पर आपके डेलीगेट जो आपका आया है उसके साथ में बैठ के बात करूंगी। फिर बाद में आधे घंटे बाद 7:30 के बाद मेरे पास सूचना आती है कि हम सारे सांसद मिलेंगे। मैंने कहा पूरे सांसद आ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तत्काल अपने ऑफिस में व्यवस्था करवाई कि सारे सांसद आ रहे हैं। फिर उसके बाद महुआ मित्रा जी मेरी पीएस के रूम में जाती हैं और कहती हैं मैं अकेले मिलूंगी। मैंने कहा अकेले तो आप कभी भी मिल सकती हैं, मिलने की मनाही नहीं है, लेकिन आज जो जिस विषय को लेकर के आप प्रतिनिधि मंडल लेकर के आए हैं, पूरा प्रतिनिधि मंडल आपका बैठे और बातचीत हो। फिर उसके बाद डोलो गई, उसके बाद राज्यसभा सांसद बहन गए कि हम अलग से मिलेंगे। मैंने कहा आज मैं किसी से अलग से नहीं मिलूंगी, आज सामने टेबल में बैठ के वार्तालाप होनी है मनरेगा को लेकर के। फिर मेरे पास 8 बजे सूचना आती है कि हम पूरे सांसद आ रहे हैं। ये 6:30 बजे से मैं 6 बजे पहुंच गई थी, 6:30 बजे से 8 बजे मेरे पास सूचना फिर आती है कि हम पूरे सांसद मिलेंगे। मैंने कहा आइए, कोई मनाही नहीं है। अब मैं वेट करती रही। 8:20 में फिर मेरे पास सूचना आती है कि हम पहले जनता से आप मिलिए। मैंने कहा जनता तो मेरी है, मुझे जनता से कोई मिलने की दिक्कत नहीं है। पश्चिम बंगाल मेरे से अलग नहीं है, लेकिन जिस विषय को लेकर के आप आए हैं पहले उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। 8:25 पर इन्होंने कहा कि हम जनता से आप नहीं मिलेंगे तो हम नहीं मिलेंगे। मैंने कहा पहले आपसे मिलूंगी, जनता मेरी है, मैं मिलूंगी, कहीं भी मिलूंगी। जिस तरह से महुआ मित्रा जी ने माननीय मोदी जी को मेरे को झूठा बोला, इसीलिए मुझे अपने ऑफिस की वीडियो बनवानी पड़ी। मैं 2.5 घंटा ऑफिस में बैठी रही। यदि मुझे मिलना नहीं होता तो मैं अपना काम छोड़ के दिल्ली क्यों पहुंचती, मैं ऑफिस में इंतजार क्यों करती। यदि मेरे अंदर कोई कमी थी तो मुझे इंतजार नहीं करना चाहिए था। मेरे को बोला गया कि पीछे गेट से चली गए। मैं 4 नंबर गेट से हमेशा जाती हूँ, 4 नंबर गेट के पास मेरा ऑफिस है, 4 नंबर में ही आती हूँ जाती हूँ। मुझे लग रहा है कि टीएमसी की नींव झूठ बोलने से ही खड़ी है। क्यों? जब ये टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों के खिलाफ आवाज उठाई थी, उस समय इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो कम्युनिस्टों के गुंडे जेल में होंगे। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में नारा लगाया गया था कि मायावती ने नारा दिया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हमारी गोली गुंडों की छातियों में होगी, लेकिन उल्टा हो गया था। चढ़ गुंडों की छाती पर गोली मारो, छाती पर ये नारा दिया था। लेकिन बसपा की सरकार आते ही गुंडे चढ़ गए हाथी में और गोली मारे छाती में। यही पश्चिम बंगाल के साथ हुआ है। जो कम्युनिस्टों के गुंडे थे वो टीएमसी के साथ आकर के आज पूरे प्रदेश में ना कोई महिला सुरक्षित है, ना कोई पुरुष सुरक्षित है। मैं आज तथ्यों के साथ मैं वहां भी बात करना चाहती थी और आज भी आपके बीच में शेयर जरूर करना चाहूंगी। यदि हमारा पक्षपात करने का इरादा होता
हमारी पश्चिम बंगाल की हमारी जनता, यदि पक्षपात करने का तरीका होता तो आप 9 साल बनाम 9 साल का रिकॉर्ड भी आप रिकॉर्ड करिएगा। मैं आपसे अनुरोध কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তিনি বক্তব্য রাখছেন সংবাদ মাধ্যমের সামনে যে ঘটনা ঘটে গিয়েছে দিল্লিতে এবং সেই ঘটনা প্রেক্ষিতে রাজভবনের সামনে তৃণমূল কংগ্রেসের যে ধর্ণা চলছে তার প্রেক্ষিতে আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে গোটা বিষয়টি আরও খোলসা করেন এবং তিনি যেমনটা পরিষ্কার করে বলছেন যে তিনি বলেছিলেন, তিনি সময় দিয়েছিলেন, তিনি অপেক্ষা করেছিলেন সবার সঙ্গে দেখা করবার জন্য, কিন্তু তারপরেও কেউ যায়নি তার সঙ্গে দেখা করতে, এমনকি খরচের হিসেব দিতেই হবে, খরচের হিসেব দিলেই কেন্দ্র টাকা দেবে বলেও জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তৃণমূল কংগ্রেস জানায় আগে মানুষ দেখা করবে এবং তারপর প্রতিনিধিরা দেখা করবেন এবং তৃণমূলের সাংসদরা তারা উপস্থিত ছিলেন। তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্থাৎ নিরঞ্জন জ্যোতি তিনি যেমনটা বলছেন যে প্রথমে খরচের হিসেব দেওয়া হোক এবং তারপরেই কেন্দ্র টাকা দেবে, 100 দিনের কাজের টাকা। এবং মনরেগা নিয়ে যে বক্তব্য তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাখা হয়েছিল তারই প্রসঙ্গে আজ সংবাদ মাধ্যমের সামনাসামনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি তিনি বক্তব্য রাখেন এবং পরিষ্কার করে তিনি বলছেন তিনি অপেক্ষা করেছিলেন, দেখা তিনি করবেন বলে, কিন্তু দেখা তার সঙ্গে কেউ করেননি। प्रधानमंत्री आवास जिसमें इन्होंने अपात्रों को दिया, शिकायत पर कार्रवाई हुई, पात्र वंचित हैं, उसमें भी आप देखिए यूपीए की सरकार में जो इंदिरा आवास चलते थे उसमें 4,400 करोड़ रुपया दिए गए 9 सालों में। कितना दिया गया? आप थोड़ा बोलते जाइए ना, आपको रिकॉर्ड याद रहेगा। 4,414। मोदी जी की सरकार ने कितना दिया? 30,000 करोड़ रुपए दिए प्रधानमंत्री आवास में। तिगुना चौगुना का अंतर हो गया ना, 6 गुना अंतर हो गया। अब आप देखिए यदि हमें प्रदेश सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करना होता तो हम अन्य मद का पैसा रोक सकते थे। मनरेगा में गड़बड़ियां हुई 2020, 2019, 19, 20, 21 लगातार 3 साल पत्र लिखे गए। हुगली कई जिलों में एक एक गांव पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ, उसको हमारी सरकार ने, हमारे सेक्रेटरी ने, हमारे मंत्री ने पत्र लिखा कि जिन्होंने गड़बड़ी की उनके ऊपर कार्रवाई करिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको इसलिए पूरा डेटा लेकर के आई हूं। टीएमसी के लोगों ने कहा कि साध्वी जी भग गई, हमसे मिली नहीं। मैं आज पश्चिम बंगाल में आई हूं, जहां भी उनको बैठना हो मेरे साथ बैठ करके वार्तालाप करें। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তিনি পরিষ্কার করে বলছেন যে তিনি রাজি রয়েছেন কথা বলার জন্য। মনমোহন সিং এর সরকারের সময় থেকে 2014 পর্যন্ত যে মনরেগাতে 14,400 কোটি টাকা দেওয়া হতো, বর্তমানে সরকারের সময় সেটা বাড়িয়ে প্রায় 6 গুণ করা হয়েছে, 54,000 কোটি টাকা দেওয়া হয় মনরেগাতে। 2019, 20, 21-এ এক একটা দুর্নীতির প্রেক্ষিতে প্রত্যেকটা সময় কেন্দ্রের তরফ থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা রাজ্যের তরফ থেকে নেওয়া হয়নি। যারা চান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন, অর্থাৎ তিনি পরিষ্কার করে বলছেন তিনি রাজি রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কথা বলতে। বর্তমান রাজ্যের যারা সরকারে রয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কেউ না কথা বলতে চাইলে তিনি কি করবেন? কলকাতায় তিনি এসেছেন, সংবাদ মাধ্যমের সামনাসামনি হয়ে একেবারে গোটা বিষয়টি খোলসা করলেন। সেদিন দিল্লিতে কি ঘটেছিল কৃষি ভবনের সামনে সে বিষয় বলতে গিয়ে তার প্রেক্ষিতেই মন্তব্য এই মুহূর্তে সংবাদ মাধ্যমের সামনে আরো বক্তব্য আপনাদেরকে শোনাবো কি বলছেন তিনি। हमदर्दी नहीं होती और इनके यूपीए की गवर्नमेंट के सरकार के समय जो इंदिरा आवास थे, ये 45 लाख तो हमने मकान दिए। इंदिरा आवास 10,21,000 वो अपूर्ण घर हमने पूर्ण किए। यदि हमें पैसा नहीं देना होता तो हम ये नहीं कर सकते थे। हम पश्चिम बंगाल की जनता के साथ छलावा नहीं करने देंगे। आज यदि हमें पश्चिम बंगाल की जनता के साथ हमदर्दी नहीं होती, एक दूसरा विभाग मेरे पास है जिसमें प्रधानमंत्री अन्न योजना लागू की गई। कोविड के समय से लेकर के अभी तक लगभग इस राज्य में लाभार्थियों की संख्या 6 करोड़ 2 लाख है और ये अन्न फ्री हम लोग दे रहे हैं, मोदी सरकार दे रही है।
जिसमें राज्य सरकार को 39,71,000 टन आवंटित किया गया। यदि पक्षपात करना होता तो इसका भी पैसा हम रोक सकते थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ममता बनर्जी जी की सरकार किस हद तक जाएगी। मैं संत हूं, मैं इनकी तरह नेता नहीं हूं। जिस तरह से महुआ मित्रा ने मेरे को झूठ बोला, आप लोग जिस इशू को लेकर के गए थे क्यों नहीं बात किया, क्यों नहीं मेरे ऑफिस में आप अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर के आए, क्यों? हमारे यहां कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इससे प्रदेश में घोटाला हुआ, मनरेगा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। अब एक और आपको जानकारी देना चाहती हूं। ये हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी मेरे ही विभाग का है। यदि हम मनरेगा में रोकते तो इनका भी तो पैसा रुकना चाहिए ना। यूपीए की गवर्नमेंट में राशि कितनी दी गई प्रधानमंत्री सड़क योजना की? 5,400 करोड़ रुपया। क्या यहाँ के लोगों को सड़कों में चलने का अधिकार नहीं था क्या? यूपीए की गवर्नमेंट में खंबे बन के भी सहयोगी बने हुए थे। मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया दिया इन 9 सालों में। तो भैया हिसाब तो होना चाहिए ना। 9 साल बनाम 9 साल, ये तो हिसाबों में देना पड़ेगा। महिला है, हमारे देश की महिला यदि सशक्त नहीं होगी तो हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। जिस सरकार में शामिल थे, मनमोहन सिंह की सरकार में, उस समय स्वयं सहायता समूह की बहनों को बैंक से ऋण कितना दिया गया था? 600 करोड़ रुपए। कितना दिया गया था? क्या पश्चिम बंगाल की महिला आत्मनिर्भर नहीं होनी चाहिए? उसको अपने पैरों नहीं खड़ा होना चाहिए? इनके समय 600 करोड़ रुपया। अब एक आंकड़ा मोदी जी का भी मैं देना चाहती हूं। मोदी जी के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, सिर्फ पश्चिम बंगाल में 74,000 करोड़ उन महिलाओं को बैंक से लोन दिया गया। कितना आंकड़ा बढ़ता है भाई? 6,000 करोड़ और 74,000, 600 करोड़। প্রত্যেকটি তথ্য একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরছেন, কোথায় কোথায় কোন কোন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে, কত টাকা রাজ্যকে দেওয়া হয়েছে এবং তারপরেও যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে সেই দুর্নীতি প্রসঙ্গ টেনে তিনি বারংবার একটাই কথা বলছেন যে তিনি এখনো পর্যন্ত রাজি রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা যদি দেখা করতে চান তাহলে তিনি দেখা করবেন, পেছন দরজা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য নয়। পশ্চিমবঙ্গ আলাদা কোনো জায়গা নয়, পশ্চিমবঙ্গে তিনি নিজে এসেছেন এবং তিনি কথা বলতে রাজি রয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতি তিনি স্পষ্ট করে বলছেন, সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি আরও যেমনটা বললেন, অর্থাৎ পূর্ববর্তী যে সরকার ছিল সেই প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার টাকাও তো আটকে দেওয়া উচিত নয় বলেও প্রশ্ন। একই সঙ্গে তিনি আরও একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, যেখানে 11,000 কোটি টাকা দিয়েছে 9 বছরে, অর্থাৎ 11,000 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। মহিলারা সশক্তি না হলে, অর্থাৎ মহিলাদের এই ক্ষমতায়ন যদি আরও বৃদ্ধি না হয় তাহলে দেশ এগোতে পারবে না, রাজ্য এগোতে পারবে না। একই সঙ্গে তিনি আরও একটি বিষয় উল্লেখ করেন, যেখানে তিনি বলছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি একজন মহিলা, অন্যদিকে রাজ্যে নারী এবং পুরুষদের নিরাপত্তা সুরক্ষা তা কোথায় রয়েছে সেই প্রশ্ন তুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। इनके समय क्या तब मनरेगा का पैसा नहीं मांगना चाहिए था? राष्ट्रीय सामाजिक पैसा नहीं मांगना चाहिए था? इनके समय 3,685 करोड़ रुपया के लिए दिया गया। मेरी सरकार ने, मोदी सरकार ने 3,000 के बजाय 7,000 करोड़ रुपया दिया। आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? यही कारण है कि दिल्ली में चर्चा करने से भागे, क्योंकि इनके पास भ्रष्टाचार के अलावा कोई सबूत नहीं था।